So hello everyone, welcome to my channel CS Ab Initio. In this video, we'll discuss what are the fundamental duties, what are the enforceability of fundamental duties, and to what extent citizen of country is bound to fulfill their fundamental duties. So let's start. So in 1975, when emergency was imposed in our country, government realized that Indian citizens are enjoying some fundamental rights in our constitution, but there is no corresponding duty which citizens of the country owe to their country. And it was also seen in other constitutions that there are certain fundamental duties imposed on citizens to which they are bound. It shows their duty towards the country. So government constituted a committee named Sardar Swan Singh Committee in 1976. So the main objective of this committee was to finalize the kinds of fundamental duties which can be imposed on the citizens, to define the fundamental duties, and to make the citizen of country realize what are their duties towards the nation. So this committee suggested fundamental duties which were included in our constitution by 42nd Amendment. जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट हुआ था और उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. सो 42nd अमेंडमेंट से एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, चैप्टर 4A, जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, और इस आर्टिकल में हमारी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है. सो इनिशियली व्हेन 42nd अमेंडमेंट आया था तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दी गई थी. उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी 86th अमेंडमेंट से. सो आज की डेट पे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है which should be fulfilled by Indian citizens. अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज के पीछे कंसेप्ट क्या था? सबसे पहला तो कंसेप्ट जैसे हमने देखा कि सिटीजन्स को रियलाइज ही नहीं था उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द नेशन. They were only enjoying the fundamental rights. They were never reciprocating. And this was realized by the government at the time of imposing an emergency in 1975. So it will basically act as a warning against anti-social activities. So government ने कहा fundamental duties जो है वो citizen की duty है और वो उनको warn करेगी anti-social acts के लिए. So अगर कोई citizen anti-social activities में indulged है, then उसकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है टू नॉट टू indulge in such activities. Secondly, citizens should also know that they also have some duties towards nation in a similar manner where the government have some duties towards their citizens. और fundamental duties define करने से एक तरह का discipline और commitment impose होगा citizens पे. It is as simple as that. If we want some sort of systematic behavior from others, we should also behave in a same way. And therefore, the concept of fundamental duty is also based on same thing, that there should be a fundamental duty corresponding to fundamental rights. So अब हम देख लेते हैं fundamental duties क्या है. टोटल 11 fundamental duties है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51A में दी हुई है. सबसे पहली fundamental duty है to abide by constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. So it is a duty of each and every citizen कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन है उनकी रिस्पेक्ट करे, और नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी रिस्पेक्ट. सेकेंड ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for freedom. तो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी ये बोलती है कि हर एक सिटीजन को हमारी जो नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुई थी उससे इंस्पायर रहना चाहिए और उसमें जो भी चीजें हुई थी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको आइडियल मान के चलना चाहिए. थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सो हमारे प्रियम्बल में सवर्निटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया डिफाइन है. And it is said that every citizen of country shall act for protecting sovereignty, integrity and unity of India.
कोई भी सिटीजन इन तीनों चीज के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगा। सो फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो इट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री टू डिफेंड देयर कंट्री को डिफेंड करने के लिए, नेशनल सर्विस देने के लिए हमें गवर्नमेंट कभी भी बुला सकती है और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट करना। Fifth fundamental duty है to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst the people of India. Since India is a diverse country, have many religions, linguistic and regional bifurcations, it is necessary that citizens of the country should live with common brotherhood. And secondly, they should not practice anything which is derogatory to dignity of women. So इस फंडामेंटल ड्यूटी के दो पार्ट है। सबसे पहले तो कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए इंडियन सिटीजन्स पे। सेकेंडली, इंडियन सिटीजन्स ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो एक वुमेन की डिग्निटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हो। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। सो हमारा जो कल्चर है, जो हम इतने सालों से हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है, उस कल्चर को हमें प्रिजर्व भी करके रखना है, बचा के भी रखना है और उसको अपना हेरिटेज मानते हुए उसको और वैल्यू देनी है। फिर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। सो हमें ये फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने फॉरेस्ट, अपने नेचुरल रिसोर्सेस जो भी हम यूज करते हैं उनको बचा के रखें और उनको इम्प्रूव करने के लिए काम करें और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं इस धरती पे उससे हम प्यार करें। तो नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल ड्यूटी गिवन टू सिटीजन ऑफ कंट्री, जिसमें ये बोलता है हर सिटीजन को साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करके रखना है, उसे अंधविश्वास, मैजिक, इन सब में नहीं फंसना है, अपने डिसीजन इन सब चीजों पे बेस होके नहीं लेने हैं। कभी भी कोई भी चीज आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं तो हमेशा उसको इंक्विजिटिव फॉर्म में देखें। फिर एक फंडामेंटल ड्यूटी आती है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब द वायलेंस। तो जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करना भी इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। तो ये पढ़ के थोड़ा अटपटा लगेगा कि अपनी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करना भी इंडियन सिटीजन की एक फंडामेंटल ड्यूटी है। सो इंडियन सिटीजन शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, उसको अचीव करना मैंडेटरी नहीं है, बट उसका ऑब्जेक्ट हमेशा यही होना चाहिए कि वो एक्सीलेंस अचीव करे जो भी इंडिविजुअल एक्टिविटी वो कर रहा है और अपनी एक्टिविटी को नेशन एज अ होल में भी इवेलुएट करे, उसकी एक्टिविटी और उसके अचीवमेंट्स नेशन को कितना हेल्प कर रहे हैं। फिर आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। हु इज अ पेरेंट और अ गार्जियन, it is his fundamental duty to provide opportunity for education to his child and what between the age of 6 to 14 years. सो पेरेंट और गार्जियन पे ये फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज की है कि उसके पास अगर कोई बच्चा है 6 से 14 ईयर्स के बीच में, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस चाइल्ड का एजुकेशन का ध्यान रखे। एंड फ्रेंड्स, जो रेड से मार्क्ड है, ए to abide by constitution, respect the national ideals; G, to protect, improve the natural environment and wildlife and have compassion for creatures; I, to safeguard public property and abjure violence; and K, provide education to children between the age of 6 to 14 years. ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किसी ना किसी फॉर्म में हमारी कंट्री में एनफोर्स की गई है बाय फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल एक्ट फॉर द पर्पस। सो अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की एनफोर्सेबिलिटी क्या है हमारी कंट्री में। तो एक केस लॉ है सूर्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया कि सिंस जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आर नॉट इम्पोज ऑन स्टेट, they are imposed on citizens of the country. So अगर इनको हम enforce या implement करना चाहते हैं तो इनको हमें legislation से back करना चाहिए. There should be a proper law backing their implementation. So fundamental duties अपने आप में enforceable नहीं है, but parliament के पास right है वो कोई law ऐसा बनाए जिससे वो फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स कर सकता है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ हुआ था विजॉय एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसको बोलते हैं नेशनल एंथम केस भी। तो इसमें कोर्ट्स ने ये डिसीजन लिया था कि अगर कोई पर्सन अपने किसी रिलीजियस और दूसरे कंपल्जन की वजह से
national anthem नहीं गा पा रहा है, then he should not be compelled to do so. But it is a duty of each and every citizen of the country to respect national anthem. So in order to avoid any kind of disrespect to our national anthem, a government formed a new act named Prevention of Insults to National Honor Act 1971. So this was all about our fundamental duties, their enforceability and case laws pertaining to fundamental duties. Thank you so much. If you have already started your preparation for CSET, please subscribe to my channel CS Ab Initio. Thank you so much.